Good morning, students. Students, worksheet 2, I am going to start of power and exponent. And in the beginning, the concept is reciprocal. And I think all you know the meaning of reciprocal. Reciprocal of x means, beta, suppose this I am taking as a number, rational number, x is this one and y is this one, and if I want to take the reciprocal, then in this way it will come. Okay, so that means the reciprocal of x is 1 by x. किसी भी नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकालना है. सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5, then that is 1 by 5. Suppose I want to find the reciprocal of minus 1 by 7, then what I can do, the reciprocal of minus 1 by 7 is minus 7. That means साइन को तो आपने टच नहीं करना, but the number is shifted into, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और अगर न्यूमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. एंड वट अबाउट 1? If you want to write 1, then it will be okay. Otherwise, minus 7 is the right answer. Okay. So now, I think the reciprocal word is clear to all. So worksheet 2 also we are doing in our book only. You want to find the reciprocal of 12 raised to the power 5, and whenever you want to find reciprocal, then it should be 12 का reciprocal क्या होगा बेटे? 1 by 12. पर ध्यान रखना पावर को टच नहीं करना आपने. So the reciprocal is 1 by 12 whole power 5. Similarly, in this question, if you want to find the reciprocal, then this is minus 7 by 3. आपने सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल लेना है, ना तो किसी साइन को टच करना है, ना ही पावर को टच करना है. Similarly, this question is given, you want to find the reciprocal, then this is minus 1 by 9 whole power 4. Okay, so in this way, this second question you can complete. One part here I am showing, that is your 8th part, in which you want to find the reciprocal, and the question is you want to find the reciprocal of 2 by 3 and 9 by 4. Of this question you want to find the reciprocal, but as you know कि whenever we have to find the reciprocal, the number should be a single rational number like this, minus 1 by 7 or 5 or 1 by 5. Now how we can simplify? 3 1s are 3 3s are 2 1s are 2 2s are. So what we can write, reciprocal of 3 by 2 is equal to 2 by 3 is the answer. यानी बेटे आप उसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा that will be the answer. साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. 9th part is there, and in 9th part question is 1 by 2 whole square and multiplied by 4. So again we have to open the bracket. Immediate reciprocal नहीं लेना बेटे. into 4, 4 से 4 कट गया 1, and because you know कि reciprocal of 1 and minus 1 is only 1. जब भी हमें रेसिप्रोकल 1 का या माइनस 1 का निकालना है तो आंसर इज ऑलवेज 1. 1 का रेसिप्रोकल 1 और माइनस 1 का माइनस 1. ठीक है बेटा जी. तो बेस्ड ऑन दिस यू आर हैविंग योर सेकेंड वर्कशीट, यू कैन कंप्लीट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. और ये लॉज बेटे जी सबको बिल्कुल टिप्स पे कर लेने हैं. 1 by 1 we will write, and 1 by 1 we will learn also. Side by side we will learn also. So this is, read करो बेटे क्या है ये, x raised to the power m, right? x raised to the power m multiplied by x raised to the power n. हमारे पास दो बेस हैं और पावर अलग अलग है, तो हम दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x रेज टू द पावर m प्लस n. सिमिलरली अगर डिवीज़न में है सेम चीज़,
तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक बेस है और उसके ऊपर सिर्फ एक पावर है और फिर पावर की पावर है, तो क्या होगा, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बेटे लॉज बिल्कुल टिप्स पे रखने हैं आपको। x मल्टीप्लाई y होल पावर 3 इज इक्वल होल पावर n we can write, right? So this is x raised to the power n into y raised to the power n। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नेक्स्ट लॉ में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज xn अपॉन yn। ओके, योर सिक्स्थ लॉ इज कोई भी बेस हो, 1000, 1 लाख, कोई भी बेस है आपके पास, अगर उसकी पावर में ज़ीरो है तो डैट इज़ 1 ओनली। सेवेंथ लॉ इज़, और अगर किसी बेस के ऊपर कोई नेगेटिव पावर है, राइट, सो द मीनिंग ऑफ नेगेटिव पावर इज़ यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? x raised to the power minus m is equal to 1 by x raised to the power m. Now these are your 7 laws. Yes, these are your 7 laws. As it is, you have to learn these laws because the same chapter you are having in class 8 also. So be careful कि अगर हमें ये कंसेप्ट नहीं आएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तो आगे जाके हमारे साथ प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी। सो शुड बी स्टार्ट वर्कशीट 3। तो इन वर्कशीट 3 द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3/4 होल पावर 3 मल्टीप्लाई -3/4 होल पावर 3। बुक्स है ना बेटे सबकी, एंड दिस इज इक्वल टू -3/4। अब ध्यान से देखो, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या बता सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है? इट शुड बी फॉल्स। व्हाट्स द रीज़न? रीज़न इज़ कि आपके पास ये 3 है, ये 3 है, पर ये 3/4 पॉजिटिव है और ये 3/4 नेगेटिव है। ठीक है, बेस अलग अलग हो गया, बेस अलग अलग होने से आप पावर ऐड नहीं कर सकते, सो दिस इज़ फॉल्स। सेकेंड पार्ट इज 4/7 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 4/7 होल पावर 3। सेम बेस है, 4/7 बेस इज देयर, 5 पावर है, 3 पावर है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। येस, दिस इज ट्रू। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स थर्ड पार्ट। दिस इज -1/2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय -1/2 होल पावर 3। ध्यान से देखो, सेम बेस है, पावर अलग अलग है, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होंगी पावर। 4 - 3, दिस इज -1/2 पावर 1 इज द आंसर। तो हमारे पास ये क्या हो गई, ट्रू हो गया ना, हमारा भी यही आंसर आ रहा है। एंड नाउ दिस इज 6/7 होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 6/7 होल पावर 0। तो बेटा जी ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें वी विल गेट सेम नंबर, बट वी आर नॉट गेटिंग सेम नंबर, सो दिस इज फॉल्स। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो फिल अप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट, यू कैन डू। थर्ड क्वेश्चन इट्स योर नोटबुक क्वेश्चन। तो बेटा जी जब आप थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। First and second question you can do in your book, but third, fourth and fifth, this is your notebook question. Got it? Okay. So now based on this, I am starting question number 3, and your question number 3 is -3/7 multiplied by 3 -3/7 multiplied by 4. Right? सेम बेस, पावर अलग अलग, तो लिख दो कौन सा लॉ है। by using law x raised to the power m multiply x raised to the power n is equal to, both power will add with each other, then this is -3/7 whole power 3 -3/7 whole power 4, then this is -3/7 whole power 3 plus 4, so this is -3/7 की power 7. Okay, so in this way you can do question number 3 also.
क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट स्टूडेंट्स, सेम बेस. आपको फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ लगाना है. ठीक है. सो कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो.